सर्व भारतीय हिंदू बंगाली संगठन में आज हम बांग्लादेश में सनातनी हिंदुओं की भयावह स्थिति और उसके समाधान पर चर्चा करने आए हैं। सर्व भारतीय हिंदू बंगाली संगठन सनातनी हिंदुओं के सामाजिक उत्थान एवं एकता के साथ साथ मानव कल्याण भी हो। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से खबर, जोगिंदर डोगरा, नई दिल्ली। सर्वभारतीय हिंदू बांगाली संगठনের জয়। আমার পরিতোষ মহোদয় বললেন ব্যথার কথা। এই ব্যথা তো আমাদের সঙ্গে 71 এ থামেনি, 71 এর পরেও চলছে, আর চলছে, এখনো চলছে। মধ্যে মিডিয়া রিপোর্ট আসছিল যে বোধহয় ব্যবস্থাটা ভালো হয়েছে, ওখানে বোধহয় মারকাট কমেছে, কিন্তু কোনোদিনই হিন্দুর এগেনস্টে যে অ্যাট্রোসিটিস হতো বাংলাদেশে, সেটা কিন্তু কোনোদিনই থামেনি। আজ আবার বলা হচ্ছে যে এখন বোধহয় অবস্থা একটু বেটার, কিন্তু আপনারা ভিতরে যারা অনেকে এখানে আছেন, যাদের রিলেটিভসরা বাংলাদেশে আছেন, ওনাদের সঙ্গে আপনি কথা বললে বুঝতে পারবেন যে ডেইলি কিছু না কিছু ইনসিডেন্টস হচ্ছে, কোথাও মারপিট হচ্ছে, কোথাও মার্ডার হচ্ছে, কোথাও লুট হচ্ছে। এই আমাদের সঙ্গে চলছে সিন্স 71। থামবে কবে? কিছুতেই থামবে। আমরা এত হেল্প করি বাংলাদেশকে, মোদি সরকার এত ভালো আসামে নাকি 27 লক্ষ লোক বিনা আধার কার্ডে আছে। আধার কার্ড না থাকলে আপনি স্কুল যেতে পারবেন না, কলেজ যেতে পারবেন না, হসপিটাল যেতে পারবেন না, ড্রাইভিং লাইসেন্স করতে পারবেন না, ব্যাংকে ঢুকতে পারবেন না। বাঁচবো কি করে? আমার কোশ্চেন, বাঁচবো কি করে? এই সব সাবজেক্টগুলো আমাদের নিশ্চয়ই হাইলাইট করা উচিত। আমি আরেকটা কথা বলতে চাই, দেখুন দিল্লিতে তো বলা হয় নাকি অ্যাজ পার প্রেস রিপোর্ট 2 লক্ষ বাঙালি আছে, কিন্তু আপনি দেখবেন যে কাউকে পলিটিক্যাল ইলেকশন লড়বার টিকিটই দিচ্ছে না। কেন দিচ্ছে না? বিজেপি, কংগ্রেস, ঝাড়খণ্ডে কমসে কম 5-6টা কনস্টিটুয়েন্সি আছে, ইজিলি জিতে বেরিয়ে যাবে। ওয়ান্স আপন এ টাইম, আমি যখন ছোট ছিলাম, আমি যখন স্কুলে পড়তাম, ননী গোপাল মিত্রা, তখন জনসংঘ, বিজেপি ছিল না তখন, জনসংঘের তরফ থেকে ননী গোপাল মিত্রা 2 बार इलेक्शन जीते। एकदम लोपामुद्रा बनर्जी को मैं आह्वान करता हूँ आए और अपना ओजस्वी भाषण से हिंदू जागरण की संकल्प करें। मंचे उपस्थित सबाई के आमार आंतरिक अभिनंदन और रक्षाबंधनेर आंतरिक शुभेच्छा अभिनंदन। आज आमरा এখানে কেন এসেছি? হিন্দুত্বকে জাগাতে এসেছি, আমরা হিন্দুদের এক করতে এসেছি। 1947 সালে 14ই আগস্ট যখন ভারত ভাগ হয়েছিল মোহাম্মদ জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বের অনুসারে, তখনই আমাদের এটার প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। আরো কতগুলো জীবন যেত, কিছুদিন আরো লাগতো, ভারতকে টুকরো টুকরো তো হতে হতো না। আর ধর্মের ভিত্তিতে যখন এই বিভাজন হয়েছিল, তখন সেকুলার কথাটা, এই শব্দটা কতটা ভারতবর্ষের পক্ষে উপযুক্ত। মুসলমানের জন্য যদি আলাদা দেশ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারপর ভারত কি করে সেকুলার হয়ে গেল? সবচেয়ে প্রথমে আমাদের এই ভারত গড়ার, অখণ্ড ভারত, বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর জি, নাথুরাম গডসে জি যে অখণ্ড ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার দিন আজ এসে গেছে। 1971-এ যখন পূর্বে পাকিস্তান সে বাংলাদেশ আলাদা হয়েছিল, তখন সে কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রই ছিল। পরবর্তীকালে 1988-এ ইসলামীকরণ হলো, ইসলামিক রাষ্ট্র ঘোষিত হলো।
আজ ভারতের কিছু ইন্টেলেকচুয়াল গোষ্ঠী, বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী, তারা বিভিন্ন রকম ভাবে ভারতকে সেকুলার বানানোর চেষ্টা করে। যদি ভারত এতই বেশি সেকুলারিজমকে মানে, তাহলে আজ ভারতবর্ষের মধ্যে ইসলামীকরণ কেন আগে বাড়ছে? আজ যারা সংখ্যালঘু ছিল তারা সংখ্যাগুরুর দিকে যেতে শুরু করেছে। পাকিস্তানে ভারতবর্ষকে হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করার জন্য যথেষ্ট প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে, হয়তো আমরা কিছু উপলব্ধি করতেছি না। আশা করি এই 5 বছরের মধ্যে নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করে যাবেন, এই আশা আমরা করি এবং ঈশ্বরের কাছে আমরা এই প্রার্থনা করি। এই বলে সর্বভারতীয় হিন্দু বাঙালি সংগঠন আগামী দিনে আরো শক্তিশালী হোক। সেই শক্তিশালী হওয়ার জন্য আমার পক্ষ থেকে যত রকমের সুযোগ সুবিধা, আমার পক্ষ থেকে যতটা সহযোগিতা করার দরকার আমি করব। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা জয় হোক, সর্বভারতীয় হিন্দু বাঙালি সংগঠন জয় হোক, कृष्णदा जिंदाबाद। रहे हैं बच्चों के साथ बलात्कार की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसको लेकर लगातार हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज यहाँ पर बैठ देश में नहीं हुआ है, वो म्यांमार में चल रहा है, वो अफगानिस्तान में चल रहा है, वो कहीं। अब समय ऐसा आ गया है कि इसके बाद उन भाइयों के संरक्षण के लिए थोड़ा अगर अपनी मर्यादाएं तोड़ करके भी आगे बढ़ना पड़े तो बढ़ना चाहिए, ऐसा हमारा सरकार। हिंदुओं को एकजुट करने की भी आपने बात की कि हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए, अब जाग जाना चाहिए जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं। वो मैंने इसलिए कही क्योंकि जब वहाँ ये सब इस प्रकार की हिंसा हुई हिंदू भाइयों के खिलाफ, बहनों के खिलाफ, तो कुछ यहाँ कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ऐसी यहाँ टिप्पणी की कि अगली बारी भारत की भी ऐसी हो सकती है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, हमारे हरियाणा में कहावत है कि दही के धोखे में कपास खा गए, तो वो ये गलती ना कर जाएं। भारत में इस प्रकार की अगर चेष्टा भी उन्होंने की तो मुझे लगता है कि जैसे वहाँ हिंदुओं की आबादी कम हुई है तो यहाँ भी विधर्मियों की आबादी कम होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। है तमाम बंगाली समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बांग्लादेश में जो चल रहा है उसको लेकर, जो हादसे हो रहे हैं, जो बांग्लादेश हिंदुओं पर जो घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर बैठे, क्या कुछ उद्देश्य इस बैठक का, क्या रणनीति तैयार हो रही है, क्या कुछ आप करना चाहते हैं? नमस्कार, मैं सर्वभारत हिंदू बंगाली संगठन का संस्थापक हूँ। मेरा साथ आज सर्वभारत हिंदू बंगाली संगठन से आज दिल्ली में आपने देखा, हमारा आज दिल्ली में जो हमने वादा किया था, भारतवर्ष व विश्व कोई भी देश में, कोई भी जगह में हमारा सनातन धर्म का हिंदू बंगाली माँ बहन उनको ऊपर हमला हो, कोई परेशानी हो, सर्वभारत हिंदू बंगाली संगठन का पदाधिकारी वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे परेशानी खत्म कर देंगे। ये हमारा वादा है। हमारा साथ हमारा मीनल दादा भाई है, कार्यकारी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सर्वभारत हिंदू बंगाली संगठन, हमारे साथ कल्याण राय महाशय, कोषाध्यक्ष कल्याण राय महाशय। तो क्या बांग्लादेश जाने की तैयारी आप लोगों की चल रही है? हमारा बांग्लादेश भी जाएंगे, जब वीसा खोलेंगे वहाँ पे जाके उनका सुख दुख हम देखेंगे। हिंदू लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, आज हमारा मकसद है, आज हिंदू बंगाली माँ बहन के ऊपर जो 2 इशू है, बांग्लादेश में जो हिंदू माँ बहन को जला दिए, वहाँ पे निर्यातित हुआ, वहाँ पे माँ बहन को। मैं SD जनता सेवा केंद्र की फाउंडर, बट सर्वभारतीय हिंदू संगठन में मंच में हम एकत्रित हुए। सिर्फ मैं फाउंडर नहीं हूँ, सारे संगठन का कोई ना कोई यही पे है जो फाउंडर। क्यों? हमने देखते हैं हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हिंदू है, हिंदू जो शब्द होता है, हम खुद भी हिंदू है और भी भाई बहन जो हिंदू भाई बहन है, बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, लड़कियों के ऊपर रेप हो रही है, घर लूट हो रहा है, इसलिए हम इस मंच में सब एक साथ एक आवाज देंगे। हमारा भाई कृष्ण हलदर जी आज से नहीं, बहुत पहले से, जब संगठन भी नहीं था, इन्होंने नहीं किया था, तब से ही हम हिंदू लोगों के ऊपर, असहाय लोगों के ऊपर हम सेवा में हमेशा हाजिर होते हैं। हिंदुस्तान के उजरिया आजम नरेंद्र मोदी के जरिए एक संदेश बांग्लादेश को देना चाहता हूं। जो बांग्लादेश में हिंदू पर जो अत्याचार हो रहा है, ये आज से नहीं, सन 1946 से लेकर आज तक निरंतर अत्याचार हो रहे हैं। इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई किया जाए
अगर हिंदुस्तान सरकार जरूरत पड़े तो बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री घुसा के हिंदुओं को चैन से जीने दे, और नहीं तो ये हाल चलते रहे तो हम इस संगठन की ओर से पश्चिम बंगाल में खास करके वहाँ की मुसलमानों को ऊपर बार करके हिंदुओं को वहीं पे बैठाएंगे। वो अगर बांग्लादेश में एक बनेगा तो हम पश्चिम अभी जो बॉर्डर पर हिंदू हैं बांग्लादेश के, उनके लिए क्या कहेंगे? उन्हें वापस जाना बांग्लादेश में जो हिंदू है उनको हिंदुस्तान आने नहीं दे रहा है, वो जा भी नहीं पा रहा है, वहीं पे रुके हुए हैं। लेकिन हिंदू आज खड़ा हुआ पश्चिम बांग्लादेश में, वो लोग आंदोलन कर रहा है और वो आंदोलन तेज गति ले रहा है। हिंदू अब वापस जाके हिंदुस्तान में आना भी नहीं चाहते, तेज गति